Good morning, students. Once again, welcome back to the chapter. Here is Neha ma'am, and today, I'm going to explain you the second part, the remaining part of the chapter 2, that is microorganisms, friend and foes. In the earlier session, we have studied about the classification of microorganisms and what are microorganisms. Now, on the basis of uses, the microorganisms can be categorized in useful microorganisms and harmful microorganisms. So, what are useful microorganisms? Of course, the term let's know that the organisms, the microorganism which are useful, which serves useful for us for in our daily life. We know microorganisms are useful in food and beverage industry. It is also useful in making medicines and vaccines, in agriculture, in cleaning the environment. Now let us study about them one by one in elaborate manner. Food and beverage industry. Bacteria help us in making certain foods. We know bacteria are very useful in making certain type of food. कुछ food items को prepare करने में bacteria are very helpful. जैसे we know that the conversion of milk to curd, यानी मिल्क का दही में कन्वर्ट होना, ये कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से पॉसिबल होता है? विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस. मैनी फंजाई लाइक मशरूम्स एंड मोरल्स आर एडिबल विच आर रिच. वी नो बहुत सारी फंजाई ऐसी होती हैं जिन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक मशरूम्स एंड मोरल्स. Yeast, yeast is used in bakery industries. Without yeast, these breads, these cakes and all this are made with the help of yeast only. Yeast is commonly employed in preparing food items like bread, cake, idli, dosa, dokla, etc. You must have seen when your mothers prepare idli, dosas or dokla, they let it rest for some time and allows to get it allowed to get pores inside it, because so yeast is very important for preparing these things. Yeast is also used in breweries for making wines of the process by the process of fermentation. Okay, what is the fermentation? We know that yeast undergoes एनारोबिक रेस्पिरेशन. हमें पता है कि यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का कंप्लीट बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इसकी वजह से जो ग्लूकोज है ना, जो इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होता, जिसकी वजह से एल्कोहल यानी इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है. सो इट इज़ कॉल्ड योर फर्मेंटेशन. दैट मीन्स द process by which glucose does not oxidize properly. It does not break down properly due to absence of oxygen. It converts into ethanol, and this is called fermentation. यानी conversion of glucose into ethanol due to lack of oxygen is called fermentation. yeast में fermentation भी होती है जो आपको वाइन्स वगैरह एल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं. Second, making medicines and vaccines. Bacteria and fungi are used to make medicines called antibiotics. We know bacteria और fungi को यूज करके antibiotics prepare की जाती है किसी भी disease के against. The first antibiotic penicillin was discovered by Alexander Fleming. सबसे पहली antibiotic penicillin को डिस्कवर किया था Alexander Fleming ने. और भी कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टोब्रामाइसिन. Microorganisms are also used to make vaccines. When during the first and a half year of a child, that the child is regularly given the vaccinations. The child is regularly given the vaccinations. वो vaccinations क्या होती हैं? Vaccinations actually डेड माइक्रोब्स को जिस डिजीज़ के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन देते हैं उसी डिजीज़ के कुछ डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या पोअरली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी की इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी के जो WBCs हैं, जो इम्यूनिटी है, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं. और नेक्स्ट टाइम कभी भी जब वो डिज़ीज़ हमारी बॉडी को अटैक करता है तो हमारे WBCs या हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए उस चीज़ से फाइट बैक करता है और हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज़ से उस बीमारी से होने से प्रिवेंट करता है. सो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वैक्सीनेशंस. बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स की यानी जनरली जब विटामिन बी की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती है उन मेडिसिन्स को बैक्टीरिया और यीस्ट की हेल्प से बनाया जाता है. द ह्यूमन हार्मोनल कॉल्ड इंसुलिन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया. येस,
इंसुलिन जनरली इट इज़ रिलेटेड विद द डायबिटिक पेशेंट्स जिनके अंदर ग्लूकोज की प्रॉपर कम ब्रेक डाउन होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है। उनकी बॉडी में इंसुलिन को जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, वो इंसुलिन बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में भी ये एक मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द सॉइल और एनीवेयर एल्स. दीज हेल्प टू डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं उसको डिकम्पोज करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. दे डिकम्पोज सब्सटेंसेज आर रिसाइकल एज दे गेट रीयूज फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स. उसको डिकम्पोज करके, ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म्स में सॉइल में मर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से वापस से प्लांट उसको कंज्यूम करके इन्वायरमेंट तक जाता है. एंड मीन्स दे आर हेल्पफुल इन डिकम्पोजिंग द मटीरियल दैट इज प्रेजेंट इन द डेड मैटर दैट इज फाउंड इन द सॉइल. Some bacteria decomposes sewage and other wastes in water. In agriculture, some bacteria like rhizobium, blue-green algae and nostoc live in the root nodules of plants such as gram, pea, etc. These bacteria absorb the nitrogen of the atmosphere and convert it into nitrate, which serves as a natural fertilizer for plants, hence enhancing soil fertility. We know कि plants कभी भी नाइट्रोजन को फ्री फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो हमेशा उसको ब्रेक डाउन फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इसमें हेल्पफुल कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं प्लांट्स की, ठीक है. सो एग्रीकल्चर में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया या नॉस्टोक, ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टोक, ये जनरली कहाँ प्लांट्स की रूट्स की टिप होती हैं उन पे पाए जाते हैं, और ये प्लांट को नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. कैसे? ये पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लांट्स के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, और हेंस सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं और प्लांट को भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. ओके, और बदले में इनसे इसको हम एक्चुअली सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जांपल है ये, जिसमें ये बदले में प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और प्लांट से बदले में अपने सर्वाइवल के लिए फूड लेते हैं. नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? 78% of atmosphere is composed of nitrogen. We know atmosphere में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. बट ग्रीन प्लांट्स कैनॉट यूटिलाइज गैशियस नाइट्रोजन. जस्ट आई टोल्ड यू कि प्लांट्स कभी भी नाइट्रोजन को एज इट इज यानी फ्री फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. गैशियस नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. needs to be converted into compounds of nitrogen so that plants can utilize nitrogen. यानी कि नाइट्रोजन का टूटना, प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर पाए उसके लिए नाइट्रोजन का टूटना बहुत ज़रूरी है, और इस नाइट्रोजन का उसके कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स विच कैन बी टेकन अप बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू नाइट्रोजन ब्रेक डाउन होकर प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती है, उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल सकते हैं. What are the main steps of nitrogen fixation? नाइट्रोजन फिक्सेशन के कुछ मेन स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, ब्लू ग्रीन algae and some bacteria convert gaseous nitrogen into compounds of nitrogen. Such nitrogenous compounds get deposited in soil. Just I told you, ये बैक्टीरिया जो रूट नोडल्स पे प्लांट्स के प्रेजेंट रहते हैं, ये convert gaseous nitrogen into compounds of nitrogen. Such nitrogenous compounds get deposited in soil. During lightning, some of the nitrogen atmosphere gets converted into compounds of nitrogen. यानी कि नाइट्रोजन ब्रेकडाउन में ना सिर्फ नोड्यूल्स बल्कि लाइटनिंग, जो बिजली कड़कना होता है, वो भी हेल्पफुल होता है. इट कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड्स. सच नाइट्रोजनस कंपाउंड रीच द सॉइल अलॉन्ग विद द रेन वाटर. और ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होती है वो लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से उसके कंपाउंड्स में ब्रेकडाउन होती है और रेन के साथ सॉइल में मिल जाती है. ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम सॉइल. और ग्रीन प्लांट्स सॉइल में से इस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी तैयार करते हैं नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन रीचेस द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स थ्रू फूड चेन. और प्लांट्स जब नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स को तैयार करती है तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स को बिकॉज ह्यूमन्स और एनिमल्स कंज्यूम द प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उस तरीके से वो नाइट्रोजन फूड चेन के थ्रू बाकी ऑर्गेनिजम्स में पहुंचती है.
A major portion of nitrogen from animals and plant is removed during excretion. Of course, जो एनिमल्स द्वारा एक्सक्रीशन की जाती है, ज़्यादातर नाइट्रोजन का पार्ट उसके द्वारा लूज कर दिया जाता है. रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज सेंट बैक टू द एनवायरनमेंट व्हेन डेड एनिमल्स एंड प्लांट गेट डिकम्पोज. और जब डेड एनिमल्स और प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं तो वापस से नाइट्रोजन एनवायरनमेंट तक पहुंच जाती है. Thank you and have a nice day. So the third part, the remaining part of the chapter will be uploaded soon for you. Till then, go through it and learn it properly. Thank you and have a nice day.